اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، سچی خبریں دکھا رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم لائیو بیان کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آئندہ کل یعنی جمعرات کے دن رات 8:30 بجے اسی چینل پر لائیو جو بیان ہوتا ہے، آئندہ کل کے بیان کا بہت پیارا عنوان ہے کہ رب راضی تو سب راضی۔ آج ہم دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، گاؤں والوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مخلوق کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خالق کو بھول گئے ہیں۔ جبکہ اصل تو یہ ہے کہ خالق راضی تو مخلوق راضی۔ اللہ سب کو قدموں میں لا کر ڈال دے گا اگر اس کو راضی کر لیا جائے۔ تو بہت پیارا بیان ہوگا آئندہ کل 8:30 بجے اسی چینل پر لائیو، اپنی پوری فیملی کے ساتھ ضرور دیکھیے گا۔ پہلی بڑی خبر غزہ اور فلسطین سے دو بڑی پیاری خبریں آ رہی ہے، لیکن اس کو پرائم نیوز میں ڈیٹیل بتاؤں گا، ضرور سننا جو اسپیشل نیوز میں بناؤں گا۔ جی ہاں، پہلی خبر یہ آ رہی ہے کہ غزہ میں ملبے کے نیچے سے 37 دن کے بعد معجزاتی طور پر ایک چھوٹی سی معصوم بچی زندہ نکلی۔ 37 دن کے بعد، کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو اس کو بھی میں اسپیشل خبر میں پوری بتاؤں گا۔ اور دوسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ حماس کی قید سے جو عورتیں اسرائیلی رہا ہو رہی ہے وہ حماس اور مجاہدین کی بے حد تعریف کر رہی ہے، جس سے اسرائیلی کتوں کو بڑی مرچی لگ رہی ہے، اور دنیا کی وہ شیطانی طاقتیں، جی ہاں، جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتی ہے، وہ بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ اسرائیلی عورتیں جو قید سے چھوٹ کر آ رہی ہے وہ مجاہدین کے اخلاق کی، ان کے کردار کی، ان کے سوبھاؤ کی تعریف کر رہی ہے۔ اور ایک خبر آ رہی ہے کہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی اسرائیلی آتنکوادیوں کی طرف سے خوب خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں اسرائیل شیطانی حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شمالی غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی ہوئی، کئی ہلاک ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ نے ثالثی سے، یعنی جو بیچ میں رہ کر جنگ بندی کروا رہے، ان سے کہا ہے کہ ذرا اسرائیل پر دباؤ ڈالو کہ وہ ایگریمنٹ کا، معاہدے کا پورا پالن کرے۔ آج فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے عالمی دن پر حماس نے دنیا بھر سے اسرائیل کے آتنکواد اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اترکاشی سرنگ میں، ٹنل میں
तकरीबन 41 मजदूर जो है वो 17 दिनों से फंसे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर आ गए हैं। जी हाँ, मजदूरों को गुज़िश्ता कल देर रात बहिफाजत बचा लिया गया। और इन बचाने वालों में सबसे बड़े दो नाम आ रहे हैं, वकील खान और कुरैशी, मुन्ना कुरैशी। अपनी जान की परवाह किए बगैर 41 जाने बचाने की राह इन्होंने हमवार की। इस खतरनाक ऑपरेशन के दौरान सबसे अहम और नाजुक काम अंजाम देने वालों के नाम वकील खान और मुन्ना कुरैशी है। इन दोनों मजदूरों ने गहरे पाइप में जाकर आखिरी लम्हे की खुदाई को अंजाम दिया। उन्हें यकीन था कि वो मर भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने 41 मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता बनाया और अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया। दरअसल देश के असल हीरो यही है, वो नहीं जो वर्ल्ड कप में खेलकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। असल हीरो ये है, और वो भी नहीं जो फिल्मों में नाच गाने करके करोड़ों कमाते हैं और पूरी कौम पागल होकर उन नंगों को अपना हीरो मानती है। ये असल देश के हीरो है वकील खान और मुन्ना कुरैशी। लेकिन मुल्क का भगवा आतंकवादी टोला वो वकील खान और मुन्ना कुरैशी की तारीफ नहीं करेगा, और मुल्क का आतंकी जितने मुल्क के आतंकी रखेल चैनल है वो भी वकील खान और मुन्ना कुरैशी के नाम बार बार लेने में शर्माएंगे। इसलिए मैं आपको बताऊं कि असल देश के हीरो वकील खान और मुन्ना कुरैशी है, जिन्होंने हमारे 41 मजदूरों की अपनी जान पर खेलकर जान बचाई है। अयादिन, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी प्यारी खबर आ रही है। मैं इसे प्यारी खबर कहूंगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के उलमा ने मीटिंग मुनक्किद करके बाकायदा एक फैसला लिया कि निकाह में जो बैंड बाजा या नाच गाना होगा, जिस निकाह में, वहां हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और सुन्नी उलमा काउंसिल ने यह मीटिंग में फैसला लिया और यह भी कहा कि बात अगर किसी ने न मानी, बात न मानने पर हम उसकी तदफीन में उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाने भी नहीं जाएंगे। उलमा ने, सुन्नी उलमा काउंसिल की मीटिंग में यह बड़ा फैसला किया गया है। फैसले में तय किया गया है कि अगर किसी भी शादी में डीजे, बैंड बाजा या नाच गाना होगा तो मौलाना निकाह नहीं पढ़ाएंगे। यहां तक कि काउंसिल की मीटिंग में यह भी कहा गया कि जो कोई बात नहीं मानेगा उसकी तदफीन में भी कोई आलिम दीन नहीं जाएगा। शादी ब्याह के मौके पर समाज में फैली बुराइयों, डीजे और नाच गाने पर मीटिंग में यह फैसला किया गया है। उलमा के मुताबिक निकाह को आसान किया जाए, निकाह में फैली बिदआत को खत्म किया जाए। और यकीनन सख्ती तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि चंद दुनियादार और चंद दो कौड़ी के मालदार, बिल्कुल नीच और घटिया किस्म के लोग, जिनके पास में नई नई दौलत आ जाती है, या फिर वो कहते हैं ना कि नंगे को दंगा भारी, आजकल नंगे लोग ज्यादा डीजे और बाजा बजा रहे हैं, तो ये लोग किसी की मानते नहीं है। तो उलमा को सख्ती तो करना पड़ेगी, और ये भी जिहाद है जिसका खुद नबी पाक ने भी हुक्म दिया है। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रियासत बिहार से, बिहार में नीतीश के फैसले और लालू के फैसले से भगवा आतंकी टोला बौखला गया और ये कहने लगा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार, यानी बिहार को इस्लामिक रिपब्लिक के नाम से याद किया जाने लगा। वजह क्यों? क्योंकि महकमे तालीम से जो कैलेंडर जारी किया गया उसमें जुमा को छुट्टी और ईद की छुट्टियों में तौसी की गई, यानी जुमा की छुट्टी बढ़ाई गई और ईद की छुट्टियां बढ़ाई गई, और जन्माष्टमी और रामनवमी की छुट्टियां कैंसल कर दी गई। अब इसको लेकर बीजेपी हंगामा कर रही है और बिहार को इस्लामी रियासत बनाने का इल्जाम लगा रही है। और बीजेपी कहती है कि लालू के नाम के आगे और नीतीश के नाम के आगे मोहम्मद लग जाना चाहिए, ऐसा मशवरा बीजेपी ने दिया है। यानी मुसलमानों की 2 छुट्टियां बढ़ाने और हिंदुओं की 2 छुट्टियां घटाने पर सबका साथ सबका विकास का असली रंग सामने आ गया और बीजेपी के लीडरों को बिहार इस्लामी रिपब्लिकन और इस्लामिक स्टेट नजर आने लगा। यानी बीजेपी बिल्कुल नीच और घटिया हरकत करके मुसलमानों के मामले में दखल अंदाजी करती है और किसी भी तरीके से मुसलमानों को नाराज करके भगवा आतंकी टोले को खुश करना और पोलराइजेशन, लड़ाओ और राज करो, अंग्रेजों वाली नीच पॉलिसी पर अमल करना, यह बीजेपी का असल मिशन है, ताकि इसी नीच हरकत से कुर्सी पर ज्यादा दिनों तक बैठा जा सके और कुर्सी को हासिल किया जा सके। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नीच और घटिया हरकतें जब से योगी आदित्यनाथ बैठा है,
भगवा आतंकी टोले की घटिया और नीच हरकतें बढ़ गई है। अभी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक गैर इंसानी सुलूक, अमानवीय सुलूक किया गया। मेरठ में एक स्टूडेंट को मारा पीटा गया, उसके मुंह में पेशाब किया गया। मरकजी मुलजिम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के बाद अब मेरठ में भी इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया। यहाँ मुसाबकती इम्तिहान की तैयारी करने वाले तालिब इल्म के साथ गैर इंसानी फेल पेश आया। अफसोसनाक बात है कि इस फेल को अंजाम देने वाले तमाम मुलजिमान भी स्टूडेंट्स हैं। यह वाकया मेरठ के मेडिकल पुलिस स्टेशन इलाके में पेश आया है। वीडियो वायरल होने के बाद तालिब इल्म शदीद जहनी दबाव का शिकार है और उसके घर वालों ने धमकी दी है कि अगर कार्रवाई न की गई तो वो खुदकुशी कर लेंगे। बताया जा रहा है कि इन तमाम दोस्तों ने पहले शराब पी, फिर तालिब इल्म को उसके बाल पकड़कर शदीद मारा पीटा, जान से मारने की धमकी देते हुए पिस्तौल मुंह में डाल दिया, गले में बेल्ट डालकर एक सुनसान जगह ले गए, चेहरे पर पेशाब किया। मेरठ पुलिस ने मरकजी मुलजिम आशीष समेत 3 लोगों को और गिरफ्तार किया है। और स्टूडेंट्स ने यह हरकत की है। एक्चुअल में स्कूल और कॉलेज में भी जो भगवा आतंकवादी जो संगठनाएं हैं वो ऐसा ही नफरतों का माहौल, स्कूल और कॉलेज जो शिक्षा के मंदिर है वहां पर भी ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि बच्चों के जहन में भी नफरतें पैदा हो रही है दलित, मुसलमानों, SC, OBC से। अगले दिन तेलंगाना से बड़ी खबरें आ रही है। आप जानते हैं कि तेलंगाना में इलेक्शन का माहौल है और तेलंगाना में पूरी तरीके से कांग्रेस का माहौल चारों तरफ नजर आ रहा है। अभी राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हो रही है, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी हैदराबाद में डिलीवरी बॉयज और सैनिटरी वर्कर्स और ऑटो ड्राइवर से मुलाकात कर रहे हैं और एक ऑटो में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, लोगों के साथ मिल बैठ कर बातें करना, उनके दुख दर्द को जानने का काम राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना रूट लेवल पर आकर और ग्राउंड लेवल पर आकर कभी भी मोदी जी ये काम नहीं कर सकते हैं। इस वजह से राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है और कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि 30 नवंबर को वोटिंग होने वाली है तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन की। गुज़िश्ता कल इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। आखिरी दिन जो था इंतखाबी मुहिम का प्रचार और प्रसार का, उस दिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और दीगर पार्टियों के लीडरान भी बड़ी तादाद में हैदराबाद में मौजूद रहे। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। अगला दिन बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भगवा नफरती आतंकी टोले के मुंह पर तमाचा मारा। जी हाँ, खबर है कि पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी लगाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्शन देते हुए कहा कि ये कैसी बकवास अर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी आयद करने का मुतालबा करने वाली दरखास्त को निकाल कर फेंक दिया और हुब्बुल वतनी पर दर्श दिया, यानी इस भगवा आतंकी टोले को वतन से मोहब्बत सिखाया और बताया कि ये चीजें वतन में नहीं होनी चाहिए। फनकारों की कोई सरहद, कोई बॉर्डर नहीं होती। फनकार अपने फन के जरिए से पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं और अपने फन के जरिए से लोगों में प्यार, मोहब्बत, एकता और अमन और शांति का पैगाम देते हैं। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। अगला दिन कोलकाता से बड़ी खबर आ रही है। मगरबी बंगाल के कलकत्ता से खबर आ रही है कि आज वहां पर अमित शाह के कदम पड़ने वाले हैं, अमित शाह जाने वाले हैं। इसलिए तृणमूल कांग्रेस ने इसे मनहूस दिन, यौम सियाह और ब्लैक डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है, क्योंकि वजीर दाखिला अमित शाह की कोलकाता आमद के दिन को बीजेपी की एक मेगा रैली में शिरकत के लिए यौम सियाह, ब्लैक डे और मनहूस दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है कि मगरिबी बंगाल में अमित शाह के कदम ये बंगाल के लिए मनहूस कदम होंगे। इसलिए तृणमूल कांग्रेस ने ब्लैक डे और यौम सियाह मनाने का मुतालबा किया है।
एक्चुअल में अमित शाह हो या मोदी हो, इनके कदम 6-7 महीने हो गए मणिपुर में नहीं पड़ पा रहे, जहां पर हमारे मुल्क का हिस्सा है, अटूट अंग है मणिपुर, जो मणिपुर 7 महीने से जल रहा है, ये वहां तक नहीं जा पाते हैं, दुनिया घूम के आते हैं और अभी प्रचार प्रसार के लिए हर जगह जा रहे हैं, लेकिन जहां पर तबाही मची हुई है, जो इलाके मुल्क के जल रहे हैं, वहां पर इनके कदम नहीं जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि इनके कदम हमारे इलाकों में ना आए तो अच्छा है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों तक लगातार जो बारिश हुई है, ये तो खैर सब अल्लाह के फैसले हैं। हम इसको न गैर मौसमी बारिश कहते हैं, न कि कोई और नाम देते हैं। हमारा तो यकीन है कि जो अल्लाह करे वो बेहतर करे, और अल्लाह का फैसला, अल्लाह की हिकमतें, अल्लाह की मसलहतें अल्लाह ही जानता है। हम तो रब के हर फैसले पर राजी रहते हैं। लेकिन खबरें आ रही है कि इस बारिश से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। कई जिलों में फसलें पूरी तरीके से उखड़ गई। पूना है, वाशिम है, नासिक है, नांदेड़ जिला है, नंदुरबार है, अहमदनगर है, इन जिलों में फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी अहम खबर मगरिबी बंगाल से मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जहां सरजमीन कोतवाल में चौथा एक रोजा अजीमुशान जलसे दस्तारबंदी व तालीमी प्रोग्राम, तालीमी पैगाम होने जा रहा है। मदरसा कासिमिया अशरफुल उलूम कोतवाल, पोस्ट बिशनपुर, थाना हरिश्चंद्रपुर, जिला मालदा, मगरिबी बंगाल में इंशाअल्लाह 3 जनवरी 2024 बरोज बुध को ये अजीमुशान प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर मैं खुद यानी मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, सदर जमीयत उलमा जिला जलगांव, डायरेक्टर वायरल न्यूज लाइव, मैं खुद यहां पर बाकायदा मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर जाने वाला हूं। ऐसे ही हजरत मौलाना अब्दुल मलिक साहब फारूकी हमदर्द नगर नई दिल्ली से तशरीफ लाएंगे। ऐसे ही यासीन अली साहब सदरुल मुदर्रिसीन जामिया अरबिया दारुल उलूम पोरसा बर्दमान से तशरीफ लाएंगे, और भी उलमाए किराम बड़ी तादाद में आ रहे हैं और ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार होगा। 3 जनवरी 2024 बरोज बुध को मैं आसपास के तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि बड़े बड़े उलमाए किराम मदरसा कासिमिया अशरफुल उलूम कोतवालपुर, पोस्ट बिशनपुर, थाना हरिश्चंद्रपुर, जिला मालदा, मगरिबी बंगाल में आ रहे हैं। आप तमाम भी तशरीफ लाएं, फायदा उठाएं। बड़ा शानदार प्रोग्राम यहां पर होने जा रहा है। और मदरसा कासिमिया अशरफुल उलूम के जिम्मेदारान बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से यह भी अपील करूंगा कि हर तरह से इनका ताउन करें, हर तरह से इनकी मदद करें और इस जलसे को कामयाब बनाने में ताउन करें।